Good evening, friends, and welcome. This is your astrologer friend Rajiv Nath, back with you with another video. And as I've already announced, I'm going to start my new batch. In fact, the introductory class has already taken place. The group is almost formed, and the introductory class took place 3-4 days back. But the regular classes are going to start from Wednesday, that is 4th of August. There are still one or two slots available, and so if anybody is interested, it is a KP batch. You can join. So just a few days back, I had published a video on shortcut KP, which is popularly known as the Gulbarga theory, and in that I had explained with a demo video on how the Gulbarga theory works. And this is another very small video that's I'm going to make it as short as possible on the same theory. And in this, I have explained the Gulbarga theory, how it works or it doesn't work. And it was a live case that I took up this afternoon, this evening, in fact. Yeah, you can call it afternoon. और उसमें कैसे हुआ क्या हुआ उसको मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ. इट वाज अ चार्ट ऑन. आज जैसा कि आपको मालूम है कि आज हमारे इंडिया के प्लेयर पीवी सिंधु जी का आज सेमीफाइनल मैच था. And so, she started the first set very well. She was leading most of the time. But suddenly at about 4:30 in the afternoon, after leading all the way in the first set, she suddenly lost the first set. So I got, I slightly being a naturally an Indian supporter, मुझे बड़ा अंदर से एक झटका सा महसूस हुआ. हमें लगा ये क्या होगा. I was expecting her to win the way she was going in the first set, लेकिन suddenly first set वो हार गई. तो हमने होररी क्वेश्चन नंबर 49 से एक कैलकुलेट किया. हमने कहा बाय द टाइम बीच मैच में आफ्टर द फर्स्ट सेट वाज ओवर एंड द सेकंड सेट वाज जस्ट अबाउट टू बिगिन और इट हैड बिगन. तो हमने किया और हमने देखा कि ये भाई पीवी सिंधु जी जीतेंगे कि नहीं जीतेंगी. तो उसी का एग्जाम्पल चार्ट जो आया उस समय रूलिंग प्लैनेट्स के हिसाब से 4:30 या 4 आपके सामने चार्ट खोलता हूँ. दैट इज द लाइव चार्ट. And in fact, by the time I thought, I would publish it before the match was over, the match was already over. वो खत्म हो गया, इसलिए मैं उसको publish नहीं कर पाया. I had made my prediction. तो आप देखिए, anyway, you will again say that, match खत्म होने के बाद आप video release कर रहे हैं. But anyway, it is a learning experience and how KP works, वो तो कम से कम आपके सामने आएगा. चलिए तो मैं खोलता हूँ और देखता हूँ कैसे. पिछला एक जो गुलबर्गा चार्ट वाला हमने एक दिया था कुछ दिन पहले, उसको आप देखिएगा फिर से और इसको देखिए हाउ इट वर्क. शॉर्टकट केपी जिसको बोलते हैं, इंस्टेंट प्रेडिक्शन. तो उसके कुछ शर्तें होती हैं. पहले आपके सामने मैं चार्ट खोलता हूं. ये देखिए, दिस इज द चार्ट दैट आई हैड प्रिपेयर्ड एट दैट टाइम. जब मैच चल रहा था तो उस टाइम में हमने प्रिपेयर किया. एक सेट खत्म हो चुका था और ये देखिए, ये एक्चुअल चार्ट 31/7/2021 आज का है. This chart was prepared. ये कर्सर को देखिएगा. This chart was prepared. I will show you with the help of the cursor. The chart was prepared at, ये कर्सर देखिए हमारा 4:30 और 49 सेकेंड्स. रांची में हमने नंबर 49 देखिए, यहाँ पे नंबर 49 से हमने प्रिपेयर किया था. द क्वेश्चन वाज मेरे दिमाग में, विल सिंधु विन द सेमीफाइनल मैच. और इसको हमने सोचा था ये पहले मैं गुलबर्गा थियोरी से इसको देखूंगा, उसके बाद फिर आगे एनालाइज करूंगा अगर जरूरत पड़ी तो गुलबर्गा थ्योरी हमने जैसा एक्सप्लेन किया था, वो सवाल ऐसा होना चाहिए इसका जवाब सिर्फ यस या नो में होना चाहिए. या उसमें कोई बैगेज या कोई क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए कि विल सिंधु विन, if she will be win then will she win in 2 sets or 3 sets. ऐसे नहीं. will she win or will she lose? will she win was the question. yes और no में ही वो थ्योरी काम करती है. तो that was my question. और गुलबर्गा थ्योरी के रूल्स क्या हैं. एक फर्स्ट सेट वो हार चुकी थी, तभी हमने ये चार्ट बनाया था. गुलबर्गा थ्योरी के रूल्स ये हैं कि जिस समय चार्ट बनाते हैं उस होररी नंबर का जो सबलॉर्ड होता है
horary number के ascendant का जो sublord होता है, if that sublord, if that sublord matches with the ruling planet ascendant star lord or the ruling planet moon star lord, तो फिर आंसर पॉजिटिव में आता है। ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 है, अगर ये रूल नंबर 1 नहीं, अगर कहीं बाई चांस अगर होता है, तो रूल नंबर 2 इज की देन दी होररी असेंडेंट, होररी नंबर का जो असेंडेंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, दैट इज दी राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड, ये तीनों जो हैं ये रूलिंग प्लैनेट से मिलने चाहिए। तो देखिए, आइए इसमें हम दोनों रूल्स को अप्लाई करके देखते हैं। कर्सर देखिएगा, कस्प 1, होररी प्लैनेट के जो सब लॉर्ड था वो था सैटर्न, और ये नीचे रूलिंग प्लैनेट्स दिए हुए हैं असेंडेंट, असेंडेंट स्टार लॉर्ड वाज वीनस। तो सैटर्न और वीनस मैच नहीं करता, दे आर नॉट द सेम। और मून स्टार लॉर्ड वाज आल्सो वीनस। तो सैटर्न, ना तो सैटर्न इज नॉट सेम एज वीनस, मतलब मैच नहीं कर रहा है। अगर सैटर्न, अगर असेंडेंट स्टार लॉर्ड सैटर्न होता या मून स्टार लॉर्ड सैटर्न होता, तो हम कह सकते थे आंसर विल बी इन पॉजिटिव, लेकिन आंसर पॉजिटिव में नहीं था। सो आई सेड कि ये मैच ये नहीं जीत पाएंगी। ठीक है। दूसरा रूल ये है कि अगर ये पहला नहीं लागू होता है, तो तीनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे मरकरी असेंडेंट के राशि लॉर्ड इज मरकरी, असेंडेंट हो रही असेंडेंट नंबर का मरकरी, स्टार लॉर्ड इज राहु, कर्सर को देखिएगा, और सब लॉर्ड इज सैटर्न। ये तीनों रूलिंग प्लैनेट्स के साथ कॉमन होने चाहिए। तो ये तीनों रूलिंग प्लैनेट्स के साथ कॉमन नहीं है। ठीक है। एक इनफैक्ट सैटर्न मिल रहा है, बाकी कोई भी नहीं मिल रहा है। सो आई डिसाइडेड कि ये शायद नहीं होगा। देखिए, इसका गुलबर्गा थ्योरी में रूल्स क्या हैं। सबसे पहले तो इट शुड बी अ वेरी प्रेसिंग एंड अर्जेंट क्वेश्चन, एकदम से दिमाग में आना चाहिए। और आपको मालूम है, पूरा देश वाज पूरा देश हमारा जो है सिंधु के पीछे था। वी हैड पिन बिग होप्स ऑन हर फॉर अ गोल्ड मेडल और एटलीस्ट अ सिल्वर मेडल। तो इट वाज वेरी प्रेसिंग क्वेश्चन। तो इसलिए यहाँ पर गुलबर्गा थ्योरी ऐसे इसमें का, इफ यू स्टार्ट यूजिंग इट फॉर एवरी सेकंड क्वेश्चन एवरी डे करेंगे, तो ये करेक्ट नहीं निकलता है। सो आई डिसाइडेड कि चलिए नहीं, हार वो नहीं जीतेंगी। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। बाय द टाइम मैं इसको जज करता और इसको मैं राइट अप बनाता और इसको पब्लिश करता, मैच खत्म हो चुका था। तो एनीवे, गुलबर्गा थ्योरी देखिए, द सबलॉर्ड of the horary ascendant is Saturn, which does not match with either the ruling planet ascendant star lord nor with the ruling planet moon star lord. Therefore, answer should be in the negative. Therefore, she would lose. अब चलिए फिर ठीक है, चलो गुलबर्गा थ्योरी से तो मान लिए। गुलबर्गा थ्योरी कई बार भाई गलत भी होती है, लेकिन केपी होररी जो कि 100% करीब करीब उसका जो है एक्यूरेसी है, केपी होररी गलत नहीं होता है। तो हमने कहा चलो उससे भी जज करके देख लें। तो कंपटीशन में या मैच में, क्रिकेट मैच हो कोई भी मैच, के रूल क्या है, सीधा सीधा रूल ये है कि सिक्स्थ सबलॉर्ड जो है, सिक्स्थ सबलॉर्ड जो है वो विक्ट्री ओवर ओपोनेंट या और एनिमीज को दिखाता है। तो सिक्स सबलॉर्ड जो है विक्ट्री सिग्निफाई करना चाहिए। और 11 सबलॉर्ड जो कोहेरेंट होता है, इस केस में आई वाज द कोहेरेंट, तो 11 सबलॉर्ड शुड बी सपोर्टिंग सपोर्टिंग दी विनिंग हाउसेस। तो इसमें चलिए दोनों देख लेते हैं। 11 सबलॉर्ड क्या है, पहले 6 सबलॉर्ड को ही देख लेते हैं। 6 सबलॉर्ड देखिए, यहाँ पर कस में देखेंगे वीनस है, और वीनस को टेबल ऑफ सिग्निफिकेटर्स में आप देखिए, वीनस क्या सिग्निफाई कर रहा है स्ट्रांगली, वीनस कर रहा है फिफ्थ हाउस को सिग्निफाई। फिफ्थ हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, फिफ्थ हाउस इज गेन्स टू दी एनिमी। और वीनस क्या कर रहा है सिग्निफाई, 12th हाउस को कर रहा है। ठीक है, विच अगेन इज लॉस। तो 6 सबलॉर्ड इज नॉट सपोर्टिंग हमारे सिंधु जी को। 6 सबलॉर्ड जो मैं चाहता था वो गेन्स टू दी एनिमी, टू दी ओपोनेंट मिल रहा है, यानी कि वो हार जाएंगे और उनका ओपोनेंट जीतेगा। अब 6 सबलॉर्ड का सबलॉर्ड कौन है वो भी देखना जरूरी है। तो 6 सबलॉर्ड का सबलॉर्ड वीनस है। वीनस का सबलॉर्ड ऊपर वाले टेबल में देखिएगा, इट इज मून। मून क्या किस हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मून अगेन देखिए आप यहाँ पे टेबल ऑफ सिग्निफिकेटर्स, मून इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग द फिफ्थ हाउस, दैट अगेन इज गेन टू द ओपोनेंट। और मून किसको कर रहा है,
मून 12th को कर रहा है. सो सबसे स्ट्रांगली मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्निफिकेशन उसका फिफ्थ हाउस का, दैट इज गेन्स टू द एनिमी. तो बोथ वीनस एंड इट्स सबलॉर्ड मून, दे आर बोथ दे आर बोथ सॉर्ट ऑफ सेइंग कि वो जीत नहीं पाएंगी. ठीक है, मून थर्ड हाउस को सिग्निफाई कर रहा है. इट इज एन इंप्रूविंग हाउस बट वो विक्ट्री नहीं दिखाता है. ठीक है. अब ए लेवल सिग्निफिकेशन इसको कहते हैं, द स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्निफिकेशन. आपको मालूम है कोई भी प्लैनेट अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देता है. तो हमने देख लिया सिक्स सब लॉर्ड को. अब चलिए, अब मेरी इच्छा अपनी पूर्ति को भी देख लेते हैं. हमारी इच्छा पूर्ति किससे देखेंगे? 11th हाउस से देखेंगे. 11th हाउस सब लॉर्ड कौन है? वो मून है. मून को हमने देख लिया, मून क्या सिग्निफाई कर रहा है. मून का भी सबलॉर्ड का सबलॉर्ड कौन है? तो ऊपर देखिए, मून का सबलॉर्ड इज वीनस. वीनस क्या सिग्निफाई कर रहा है वो भी हम देख चुके हैं. तो दोनों तरफ से अगर आप देखेंगे तो बोथ आर सिग्निफाइंग, यू नो व्हाट बोथ आर सिग्निफाइंग. आप देख लिया आपने कि दोनों फिफ्थ हाउस को सिग्निफाई कर रहे हैं, दैट इज गेन्स टू द एनिमी. सो कहीं से भी हम ये नहीं कह सकते थे दैट दैट शी इज गोइंग टू विन. तो द आंसर वाज दैट ये हारने का ही ज्यादा चांस है, और वही हुआ. सो बिफोर द सेकंड सेट, इन फैक्ट इतना जल्दी वो हारी, इतनी बुरी तरीके से हारी कि बाय द टाइम आई कुड फिनिश जजमेंट एंड इस वीडियो को तैयार करने या इस राइटअप को तैयार करने में टाइम लगता है, उसके पहले वो इट वाज ऑल ओवर. अदरवाइज मैं उस मैच के बीच में ही इसको पब्लिश करके आप लोगों के सामने इसको प्रस्तुत कर देता. सो दैट्स इट. आप देखिए, इसको समझिए. केपी होररी नेवर फेल्स. गुलबर्गा थ्योरी, इफ इट इज नॉट सीरियसली आस्क्ड और अर्जेंट क्वेश्चन नहीं है और बहुत अर्जिंग क्वेश्चन नहीं है, तो हमेशा सही नहीं खरी उतरती है. लेकिन अगर बहुत ही प्रेसिंग क्वेश्चन है तो सही उतरती है. So that's it for it's a short video. I wanted to make it a short video and inviting you to join my regular KP classes जो कि 4 अगस्त से शुरू कर रहे हैं. बाकी पीछे के वीडियोस देखिएगा, मेरे फोन नंबर वगैरह सारे कुछ हैं डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं. और इसके थंबनेल, इस वीडियो के थंबनेल में भी है, उसमें हमने लिखा है न्यू बैच स्टार्टिंग, और इसको डेमो वीडियो हमने बनाया है. यू कैन गेट इन टच विद मी. 2.5 से 3 महीने का कोर्स होता है. आपको मैं केपी एस्ट्रोलॉजर बना दूंगा. जैसे कि बहुत लोग, दिस इज माय 4th केपी बैच व्हिच आई एम गोइंग टू स्टार्ट. बहुत लोग केपी एस्ट्रोलॉजर बन चुके हैं. यू कैन आस्क देम. Thank you so much for watching. Have a good day. Have a good night. Bye. Thanks.